Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about and discuss previous year questions from Romantic Age so that my students for NTA NET exam and my students from HPSC PGT exam can prepare at the same time. PYQs come handy when it comes to the exam related anxiety, to lessen the exam related anxiety. PYQs here are the most expected, most important questions from Romantic Age. I have touched upon all the major poets and the questions are 15 in number. The time is less if I talk about NTA NET. The time is less if I talk about HPSC PGT exam for the subject English. So without wasting time, let us get into the PYQ practice. This will be very useful video for you. Kindly keep a note of all the questions that I am going to talk about today. They are not only important but they are most expected questions for HPSC PGT also. Let us practice together. Let us read the first question. I hope the questions are visible on your screen. Which of the following is not true about lyrical ballads? But before I discuss this question, I want to highlight two major things. Lyrical ballads is a collection of poems written by William Wordsworth. But in this anthology, four poems have been contributed by S.T. Coleridge. In lyrical ballads, there are total 23 poems, and out of 23, four are contributed by S.T. Coleridge, another romantic poet. But why I am telling you this detail? Because if you understand a work, a question like this, there is no way that you will get the answer wrong. 23 poems हैं, 4 एस.टी. कॉलरिज ने कंट्रीब्यूट की है और इन 23 पोम्स को लिरिकल बैलेड्स की एंथोलॉजी में पब्लिश किया गया है. लिरिकल बैले का मीनिंग क्या होता है? लिरिकल होता है जो म्यूजिकल होता है, राइमिंग होता है. बैले एक ऐसा पोएटिक फॉर्म है जो कि यूज किया जाता था कॉमन पीपल के द्वारा. Before we come to the romantic age, before we step in the romantic age, the age that preceded this romantic age was the age of prose and reason, was the age of enlightenment, was the age of wisdom, as propounded by writers like Dr. Samuel Johnson, Joseph Addison, Richard Steele. The style of writing literature was more prosaic and not poetic, and if at all poetic, it was satirical. So lyrical ballet is considered to be the manifesto of romantic age. It heralded like a ringo bell that from now onwards romantic age will start, and it was completely based upon the ideas of William Wordsworth, because William Wordsworth wanted to break away from the preceding age and he wanted to introduce an age that is common in language, common in theme, and included common people. Lyrical ballads, the title of it suggested that he wanted to redefine the fact that poetry is a spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility, and he wanted to revive the romantic ideals of the medievals. Paganism, love for nature, worship of nature, regard for nature, that too to the baseline theory of common ability to understand and comprehend the feeling that one gets from nature. So lyrical ballet की पहली बात मुझे ये कहनी थी. दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आज स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव के किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो आने वाला डीएसएसपी होगा, एनवीएस होगा, केवीएस होगा,
पीजीटी होगा, टीजीटी होगा, एनटीए नेट होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा आरपीएससी का, यूपीपीएससी के जो इतने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, सबके लिए आज मैं ये कॉमन बात कहने वाली हूँ। जब भी अपना ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर अटेम्प्ट करने के लिए बैठो, कीप इन नोट ऑफ नॉट एंड नेवर। अगर आपकी आंखों ने इन टू वर्ड्स को मिस कर दिया, आई टेल यू योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। तो बी श्योर दैट यू टेक इनटू अकाउंट नॉट एंड नेवर। क्वेश्चन में जरूर से जरूर आपको पता रहना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not true about lyrical ballads? Not true. क्या सही नहीं है lyrical ballads में? मैंने बताया है, it is a manifesto of romantic poetry. It is correct. It turns English poetry away from the social and intellectual sophistication of 17th and 18th century poetry. बिल्कुल अलग लेकर के जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मैनिफेस्टो प्रीसीडिंग पोएट्री, पहले की पोएट्री से अलग लेकर के जाता है। It takes poetry out of the confines of reason and intellect to the unravished and unspoiled beauties of nature. बिल्कुल unravished, unspoiled ब्यूटीज ऑफ नेचर की तरफ लेकर के जाता है। अब ये वर्ड्स देख लीजिए, यहाँ पर जो ये टू वर्ड्स यूज किए गए हैं, अवे फ्रॉम and confines of, that means the preceding age was in the confines of reason and intellect, and romantic age, this manifesto takes us to the unravished and unspoiled beauties of nature. Fourth question thereby becomes correct, fourth option. It is very particular. No. Form and structure के लिए particular नहीं थी romantic age. It was more particular about the representation of nature, the portrayal of nature, and the impact of nature, as has been recollected in tranquility and thereby represented in poetry. तो यहाँ पे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं होगा। अगर हम एसटी कॉलेज की भी बात करें तो वो भी कोई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो नेचुरल को भी सुपर नेचुरल कर देते हैं। सेम विद कीट्स एंड बायरन एंड शेली। Next question. I hope if you are liking the way I am taking up this HPSC PGT revision, do like, share to this channel, and also if you have any query, do WhatsApp on the number given in the description box. We are here to help you people. We gave the same sort of help and service for HPSC assistant professor, and right now we are running a boot camp. इंटरव्यू की तैयारी भी करवा रहे हैं। एक बैच रन कर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड बैच के रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर कैन बी, देयर ऑट टू बी द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपना मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक लिरिकल बैलेड का आइडिया लेकर के आए, he wanted to bring it down, poetry, he wanted to bring poetry down to common language, common theme, common content. But ST कॉलरेज यहाँ पर थोड़ा सा नोजी थे, फ्राउनी थे। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। वो क्या थी कि there ought to be the difference between the language of poetry. वर्ड्सवर्थ ने लिटरेचर को ही कॉमन मैन से जोड़ दिया, लेकिन according to ST Coleridge there has to be some sort of difference between the language of poetry and the language of prose. कुछ sophistication, कुछ formalism होना चाहिए। तो ST Coleridge कहीं ना कहीं जो नेचुरल को सुपर नेचुरलाइज करते हैं वो वर्ड्सवर्थ से डेविएट करते हैं। वर्ड्सवर्थ wrote from his own brimming emotions and experience, but ST Coleridge, he was very much confident
He was wise and at the same time he was practical. He was practical when he said this thing that there ought to be the difference between the language of prose and poetry metrical composition. जबकि वर्ड्सवर्थ ने सबको पूरी लिटरेचर को एक ही प्लेट पर ला दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज क्रैम कर लीजिएगा. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner is a poem in 7 parts. 7 पार्ट्स में पब्लिश हुई है. कॉलरिज की पोम क्रिस्टाबेल के भी पार्ट्स है और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के भी पार्ट्स है, तो आपको वो पता होना चाहिए. अगस्त 2024 वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद लेक स्कूल ऑफ पोएट्री. अब लेक स्कूल ऑफ पोएट्री में हमारे पास आते हैं रॉबर्ट साउथर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज. इन्हें लेक स्कूल बोला गया है, इनकी पोएट्रीज को लेक स्कूल ऑफ पोएट्री बोला गया है. और इस कड़ी में विलियम ब्लेक नहीं आते हैं. ध्यान रखना है नॉट का, बहुत जरूरी है नॉट का ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द पोम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर? Our birth is but a sleep and forgetting. हमारा बर्थ, ह्यूमन बर्थ किस लिए है? सोने के लिए, उठने के लिए और भूल जाने के लिए. लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इमॉर्टैलिटी और विलियम वर्ड्सवर्थ की पीजीटी के स्टूडेंट्स, नेट के स्टूडेंट्स जरूर एक बार इस पर ध्यान दे के जाइएगा. इमॉर्टैलिटी और जो है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछी गई थी, सिलेबस में दी गई थी. अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, वर्ड्सवर्थ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है रोमांटिक एज के, हेरल्ड है, स्टार्ट करते हैं, पायनियर है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था इन द ईयर 1799 और फाइनल वर्जन उसका पब्लिश हुआ है इन द ईयर 1850. प्रिल्यूड को पार्ट्स में पब्लिश किया गया है. 1799 में लिखना स्टार्ट किया, द एक्सकर्शन पब्लिश हुआ, द रिक्लूज पब्लिश हुआ और फिर एक लॉन्ग बिल्डूम्स रोमन. बिल्डूम्स रोमन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बिल्डूम्स रोमन क्या होता है. बिल्डूम्स रोमन होता है जब आप किसी के ग्रोथ स्पर्ट को देखते हैं, फ्रॉम द टाइम द पर्सन इज बोर्न टू द टाइम ही बिकम्स समथिंग. द जर्नी ऑफ अ लाइफ इज बिल्डूम्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. एक पोएट जब अपनी ऑटोबायोग्राफी बताता है कि कैसे वो एक पोएट बना, तो वो बिल्डूम्स रोमन बन जाता है. सेम वे हमारी पोएट्री जो है, ये द प्रिल्यूड, ये बिल्डूम्स रोमन है, ये 1850 में पब्लिश हुआ है. पूछा जा सकता है which version of the lyrical ballet was the first one to have preface by William Wordsworth? Maximum students यहाँ पर confuse होंगे. Why? Because lyrical ballads came out in the year 1798 and the preface I tell you was added later on when Wordsworth had to clarify the fact of common man, common theme, common language. अरे भाई ये क्या कर रहे हो? इतने क्यों इन्फ्लुएंस्ड हो फ्रेंच रेवोल्यूशन से that you are bringing their motto of liberty, equality, fraternity and the power of a common man? क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हो? So he was asked to add a preface to the lyrical ballads and the preface was not added in the very first publication, it was added in the second publication. तो 1800 वाला जो लिरिकल बैले का पब्लिकेशन आया उसमें प्रीफेस ऐड किया गया था. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर एंड देन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे क्योंकि प्रीफेस टू लिरिकल बैले देखते ही दे विल टिक ऑन 1798. अब एस.टी. कॉलरिज का एक इंपॉर्टेंट वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरी बायोग्राफी ऑफ एस.टी. कॉलरिज. एंड उसमें मोटी मोटी 3 बातें इंपॉर्टेंट है. एक तो लिटरेरी बायोग्राफी, दूसरा चैप्टर नंबर 13 एंड 14. चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में क्या बताया है उन्होंने? प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी.
A poet can have a primary imagination, secondary imagination, and he should add a touch of spice जो फैंसी से आता है, सुपर नेचुरलिज्म से आता है। तो जो उनका कॉन्सेप्ट है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, वो भी इन्हीं दोनों चैप्टर्स में है। तो बायोग्राफी या लिटरेरिया का जो मोटा मोटा सार हमें देखने को मिलता है वो 13 एंड 14 चैप्टर में मिलता है, और ऑप्शंस में हमारे पास 13 नहीं है लेकिन हमारे पास 14 है। तो willing suspension of disbelief owes its origin to chapter number of biography or literaria, chapter number 14. Next question, Keats La Belle Dame sans Mercy combines which two poetic forms? कौन सी poetic forms को combine करता है? और वो two poetic forms मैं बता देती हूँ, they are lyric and dramatic monologue. Dramatic monologue चल रहा है, एक discussion चल रही है, dramatic way में एक exaggeration के साथ चल रही है, और lyric है, that means lyric तो romantic age का most favored genre है, lyricism, musical, rhyming scheme के साथ। Another very important question, P.B. Shelley's work Julian and Madalo is a conversation between Julian and Count Madalo. Who do these two characters represent? अब शेले ने लिखा है तो जूलियन तो शेले ही है, और काउंट मडालो है बायरन। लर्न कर लीजिए, व्हेन आई वाज गिविंग माय एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, और ये नेट का भी पीवाईक्यू है कि जूलियन यहाँ पर शेली है, काउंट मडालो यहाँ पर बायरन है। It's a conversation that is going between both of them. Which of the following poem uses Teresa rhyma? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया है, नेट में बार बार पूछा गया है। जब भी बात याद रख लो टेरेसा रायमा की आएगी, और ऑप्शन में आपको और टू द वेस्ट विंड दिखेगा, स्ट्रेट अवे मार्क कर देना। Teresa rhyme is a stanza structure जिसपे और टू द वेस्ट विंड में इसे एम्प्लॉय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस.टी. कॉलरिज डिजेक्शन एंड ओड opens with an epigraph. पोएम से पहले लिखे जाने वाली फर्स्ट फ्यू लाइन्स जिसको अलग पैराग्राफ बनाकर सेट किया जाता है, उसके बाद पोएट्री शुरू की जाती है। सेम चीज हमें कुबला खान में देखने को मिलती है, सेम चीज हमें डिजेक्शन एंड ओड में देखने को मिलती है। तो डिजेक्शन एंड ओड में जो बैले यूज किया गया है उसका नेम है बैले ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, ये डिजेक्शन एंड ओड का है। कुबला खान में पर्चास का यूज किया गया है, PURCHAS, उनके बैले का यूज किया गया है, इसमें सर पैट्रिक स्पेंस के बैले का यूज किया गया है। तो कॉलरिज के एलियट की तरह एपिग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, एलियट के एपिग्राफ्स को पूछा गया था HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो रोमांटिक एज में ये जो कुबला खान और डिजेक्शन एंड ओड में बैले का इंट्रोडक्शन यूज किया गया है इन ऑर्डर टू सेट द मूड एंड टोन ऑफ द पोम, तो वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो नोट ध्यान से पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बायरॉनिक हीरो? बायरॉनिक हीरो हमारा मूडी होता है, बिल्कुल होता है, पैशनेट भी होता है, रिमोर्स टोन भी होता है। कई बार जर्नी में, नाइटहुड में हमें सक्सेस मिलती है और नहीं मिलती है। तो बायरॉनिक हीरो मूडी होता है, पैशनेट होता है अपनी जर्नी को लेकर, एक्सकर्शन को लेकर, एडवेंचर को लेकर, इवन अपने लव को लेकर। शी वॉक्स इन ब्यूटी पढ़कर देखिए बायरन का, सच अ पैशनेट पोम। रिमोर्स टोन भी होता है, when we two parted in silence and tears, half broken hearted, such passion.
Whereas वो रिपेंटेंट नहीं होता है अपने एक्शंस को लेकर के, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वो रिपेंटेंट नहीं होगा, रिमोर्स टोन होगा, पैशनेट होगा, मूडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स का कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ पोएट, ऑफ अ लिटरेरी राइटर टू एक्सेप्ट the uncertainty without frowning at it, without questioning it at it। कंटेंटमेंट होना नेगेटिव इमोशंस को लेकर के नेगेटिव कैपेबिलिटी होता है। तो आप देखिए, साइंस एंड पोएट्री, नो। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी एंड डाउट विदाउट नीड फॉर फैक्ट एंड रीजन नहीं चाहिए भाई, दुखी है तो दुखी है। The ability to explore Gothic supernaturalism, no. The ability to portray satire effectively, no. So the right answer is option number 2। Here I come to the very last question, जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। I will give you a second or two to read this question. I will leave the screen there and I want you people to answer this question. This question is very important। कॉलेज का जितना कुबला खान, डिजेक्शन एंड ऑड, एंशिएंट मैन इन फ्रांस एंड ऑड इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये बायोग्राफिकल लिटरेरिया भी है। रोमांटिक एज इज नॉट ओनली द एज ऑफ पोएट्रीज, आई टेल यू, इट्स द एज ऑफ रोमांटिक नॉवल, इट्स द एज ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म आल्सो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जो स्टूडेंट्स रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम HPSC PGT के लिए भी सीरीज रन कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड मुल्क राज आनंद, रोमांटिक एज की हमने PYQs प्रैक्टिस कर ली है। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं टू प्रिपेयर एंड गियर योरसेल्फ फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्जाम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर सेक्शन। बहुत जल्दी हम राइटिंग सेक्शन की भी बात करेंगे। And if you are liking the way I am carrying out this effort for you, this PYQ revision for you, please spread the word. Let us grow together. Let us crack this exam together. Though I am not going to sit in this PGT exam, but I tell you what we are here for. We are here to help you. Let each day be the best day. हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, we have to make the best out of it. With that note, I wish you all the best as you prepare for it, since only countable days are left. And if there is any topic that you want me to help you with, please, comment section is open for you. I will definitely take into account your request. Thank you.